Hello and welcome to Foundation Course in English 2. I welcome you all to block number 1, unit 1 of this session, that is writing paragraphs. In this session, we are going to cover about the introduction to paragraphs and what is actually a topic sentence of the paragraph and developing the topics. Along with that, we are going to deal with coherence and punctuations, that is a full stop and importance of these in writing any paragraph. First of all, what is a paragraph? A paragraph is a central theme which involves all the particular elements of one topic. So, a paragraph is what? It's a sequence of sentences that supports one main point. So, you can say one point is being elaborated, one theme is there which is being elaborated in the whole paragraph. And it helps to break up large text and content easier to understand. So this is the main motive of a paragraph, that it helps to break up the large chunk of pieces of text and it helps you to make the content easier to understand with the help of different devices. I'm going to cover those transitional devices and other coherence and other punctuation marks in next in this session, but in the later part. But first of all, I want to deal with the paragraph, so that dear students, I want to introduce the particular topic, that is a paragraph, that is you can understand how to write these kind of paragraphs. So a paragraph, I told you, it's a sequence of sentences जहाँ पर आप sentences को एक के बाद एक sequence में बांधते चले जाएंगे, लिंक करेंगे उनको, लेकिन एक चीज का ध्यान रखना है कि एक ही main point या एक ही central controlling theme रहेगी जिसको हम छोटे छोटे पैराग्राफ्स में तोड़कर उसे इजियर बना देंगे समझने के लिए. सेंटेंसेस जो होंगे उस पैराग्राफ में वो बिल्डिंग ब्लॉक्स होंगे पैराग्राफ्स के. जैसे कि एक बिल्डिंग खड़ी होती है, उसी तरीके से सेंटेंसेस भी उस पैराग्राफ का बिल्डिंग ब्लॉक बनकर उसे पूरा करेंगे, उस पूरी बिल्डिंग को बनाएंगे. जैसे कि एक जूसी हैमबर्गर होता है, और एक गुड पैराग्राफ के लिए आपको दो चीजों की बहुत ज्यादा जरूरत है, एक टॉपिक सेंटेंस, एक कंक्लूजन सेंटेंस. टॉपिक सेंटेंस वो है जो आपकी थीम को एक्सप्रेस करेगा. वो एक स्टेटमेंट भी हो सकती है, वो एक प्रॉब्लम भी हो सकती है, या कोई जनरलाइजेशन भी हो सकती है उस पैराग्राफ में. बट इट्स लाइक अ जूसी हैमबर्गर, और अ गुड पैराग्राफ ऑलवेज नीड दीज टू थिंग्स टू होल्ड टुगेदर. First is topic sentence and second is conclusion sentence. So like a hamburger it is, and the topic sentence at the top bun, conclusion sentence at the bottom bun, and all the ideas coming together one by one in the paragraph. So how to deal with the paragraph? What are the different parts of a paragraph actually? First is the topic sentence. I told you it's the top bun. जो बन आप बंद करेंगे उस पैराग्राफ का, उसके अंदर आपको और भी चीजें इंक्लूड करनी है. वो रहेंगी आपकी सपोर्टिंग डिटेल्स. आपने टॉपिक सेंटेंस में थीम को एक्सप्रेस करा, जैसा कि मैंने बोला, थीम जो है आपकी जनरलाइजेशन भी हो सकती है, प्रॉब्लम भी हो सकती है, या कोई एक स्टेटमेंट भी हो सकता है. बट नाउ यू हैव टू इलैबोरेट इट. द अल्टीमेट थिंग दैट कम्स हियर इज यू नीड टू गिव ऑल द सपोर्टिंग डिटेल्स हियर. पर एक बात का ध्यान रखिए कि सपोर्टिंग डिटेल्स टॉपिक सेंटेंस के साथ कोहेरेंट होनी चाहिए. दे शुड बी लिंक टुगेदर सो दैट द रीडर कैन मेक लिंक बिटवीन द टू. The reader can make the logical links between the two with the supporting details and the topic statements. टॉपिक स्टेटमेंट के बाद आप उसके साथ साथ में सपोर्टिंग डिटेल्स देंगे ताकि उसे अच्छे से एक्सप्रेस कर सकें. व्यू पॉइंट जो है उसे डिफरेंट इलस्ट्रेशंस के साथ, एग्जाम्पल्स के साथ, इंफॉर्मेशंस के साथ और डिफरेंट व्यू पॉइंट्स के साथ आप उसमें सपोर्ट कर सकते हैं टॉपिक स्टेटमेंट को. आफ्टर दैट द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इज कलरफुल वोकैबुलरी. अब आपके पास अगर कलरफुल वोकैबुलरी है, केचप है, मस्टर्ड है, तो आप उसे और ज्यादा टेस्टी बना देंगे अपने पैराग्राफ को. आपने सब कुछ डाला और कलरफुल वोकैबुलरी नहीं डाली तो इतना मजा नहीं आएगा. अगर आप केचप डालने के बाद अगर हैमबर्गर खाएंगे तो वो कितना टेस्टी लगेगा. इसी तरह कलरफुल वोकैबुलरी भी यही काम करती है.
which is like a mustard, ketchup and relish. So it will give a flavor to your paragraph. So you must add the colorful vocabulary to give a special effect to your paragraph. Last but not the least, you will give the concluding sentence, that is the bottom bun of your hamburger. Now this is the complete hamburger with all the parts. So paragraph is also like this: topic sentence, then supporting details, then colorful vocabulary and then concluding sentence. Concluding sentence आपको पूरा का पूरा समराइजेशन देते हुए जो भी आपने कहा पूरे पैराग्राफ में उसको समराइज करते हुए, उसे लिंक करते हुए आप अपना लास्ट कंक्लूजन देंगे विद ऑल द डिटेल्स. So this is the part of the paragraph. Now we are moving towards all these parts one by one. First one was topic sentence. I told you topic sentence was a controlling ideas. So now topic is what? The controlling idea, central theme. It is the smallest unit of writing that a writer can use to get a developed message over to the reader. So यहाँ से ही मैसेज जाएगा रीडर के पास, एक कंप्लीट स्टेटमेंट. ये एक जनरलाइजेशन, प्रॉब्लम या स्टेटमेंट कुछ भी हो सकता है क्योंकि एक ये स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ राइटिंग है और पूरी की पूरी पैराग्राफ की जो राइटिंग है वो इस टॉपिक स्टेटमेंट से ही डेवलप होती है. जरूरी नहीं है कि ये बिगनिंग में आएगा. इट कैन बी इन द बिगनिंग ऑल्सो, मिडिल ऑल्सो और एंड ऑल्सो, बट इट इज द सेंट्रल कंट्रोलिंग थीम एंड आइडिया ऑफ द पैराग्राफ. सो दिस इज द टॉपिक स्टेटमेंट जिसके आसपास पूरा पैराग्राफ रिवॉल्व करेगा, जिसके आसपास सारा मैसेज रिवॉल्व करेगा. जो एक्चुअल मोटिव है पूरे पैराग्राफ का वो इसी टॉपिक सेंटेंस के आसपास घूमेगा. आफ्टर दिस, हाउ टू डेवलप द टॉपिक. जब आपने एक बार टॉपिक स्टेटमेंट दे दिया, टॉपिक सेंटेंस दे दिया, नाउ यू हैव टू इलैबोरेट इट ऑल्सो. जैसा कि मैंने आपको बताया कि आपको सपोर्टिंग डिटेल्स देने होंगे. यू हैव टू गिव सपोर्टिंग डिटेल्स ऑल्सो, बट हाउ टू गिव दोज सपोर्टिंग डिटेल्स. नाउ द क्वेश्चन अराइजेज हियर दैट हाउ टू डेवलप द टॉपिक. अब आपने टॉपिक स्टेटमेंट दे दिया, आपने बिगनिंग कर दी, बट द $1,000,000 क्वेश्चन इज नाउ हाउ टू डेवलप द टॉपिक and how to develop the paragraph. So few things, few hints I would like to give you that you can use while developing the topic. First is the idea, the main motive, the main theme, central controlling theme. You can expand that idea, and while expanding that idea you can give all your perspectives, your informations, your experiences while expanding that idea. So you can add more of the information while expanding the idea, the perspective that is in your mind. वहां पर आप अपने एनालिसिस दे सकते हैं, आप अपनी इंफॉर्मेशन जो भी आपके माइंड में उससे रिलेटेड, आपने आज तक जो भी एक्सपीरियंस किया है या आपने कभी भी देखा है या आपने पढ़ा है, उसे उस टॉपिक से रिलेटेड अगर आपके पास कोई भी आइडिया को एक्सपैंड करने के लिए इंफॉर्मेशन है, सो यू कैन गिव दैट इंफॉर्मेशन. While giving information आप डिफरेंट इलस्ट्रेशन यूज कर सकते हैं. आज तक के कितने आपने इलस्ट्रेशन देखे होंगे, कई आपके पास ऐसे इंस्टेंसेस आए होंगे जिन्हें आप एज एन एग्जाम्पल भी यूज कर सकते हैं. एंड यू कैन ऑल्सो इलैबोरेट एंड एक्सप्लेन दोज एग्जाम्पल्स विद प्रॉपर पर्सपेक्टिव. जो आपका आइडिया है, आपका पर्सपेक्टिव है, उसे आप एग्जाम्पल्स, इलस्ट्रेशंस और एक्सप्लेनेशंस के साथ अपनी इंफॉर्मेशन को जोड़ते हुए एक्सप्लेन कर सकते हैं. इस तरीके से ही आप अपने टॉपिक स्टेटमेंट को आगे डेवलप कर पाएंगे. हियर आई वुड लाइक टू गिव यू पैराग्राफ. पैराग्राफ क्या है? द मेजॉरिटी ऑफ पीपल वेयर एवर दे लिव एंड वॉट एवर देयर ऑक्यूपेशन come in contact with animals in one way or another and have to deal with them. It is obvious that the hunter has to know the ways of his quarry, that the farmer must be aware of the habits of his farmyard animals and of creatures that damage his crops, that the fisherman must know when and where to find fish and how to beat them. Even the shepherds fish meets animals all over the world, primitive tribes as well as in the modern society. There are those who delight in the observation of animals, and there is a growing awareness of the fact that sharing our world
with our fellow creatures is like traveling together. So this is an example of a paragraph. You can see in the slide also. This is a paragraph I have given you. So now what I want to teach you from this paragraph is what is actually the topic statement of this paragraph, what is actually the supporting detail I have given in this paragraph, and along with that what vocabulary I have used, colorful vocabulary, and last is concluding statement. Whatever I have given, I want to show you with this example. So what do you think? एनालिसिस अगर हम करें इस पैराग्राफ की और पिक्चर की, तो टॉपिक स्टेटमेंट क्या बना इसका? एग्जैक्टली द वास्ट मेजॉरिटी ऑफ पीपल wherever they live, whatever their occupation, come in contact with animals in one way or another and have to deal with them. So this is the topic statement, because हम पूरे पैराग्राफ में यही एक्सप्लेन करते रहे कि एग्जैक्टली बहुत सारी मेजॉरिटी ऑफ पीपल जो है वो चाहे जहां भी रहें, कुछ भी ऑक्यूपेशन को अपनाएं, पर कहीं ना कहीं वो एनिमल्स के साथ डायरेक्टली या इनडायरेक्टली लिंक जरूर करते हैं और उनके साथ उन्हें डील जरूर करना होता है। एग्जाम्पल्स हमने देने के लिए, अपनी बात को एक्सप्रेस करने के लिए हमने एग्जाम्पल्स का यूज किया। जैसे हमने ऑक्यूपेशन सिखाया कि हंटर हो गया, फ्रेमर हो गया, फिशरमैन, शेफर्ड। सो वी हैव गिवन दीज एग्जाम्पल्स टू डेवलप द पैराग्राफ। अपनी बात को इलस्ट्रेट करने के लिए, अपनी बात को डेवलप करने के लिए हमने डिफरेंट एग्जाम्पल्स का यूज किया। इसी तरह आप कुछ इलस्ट्रेशंस भी यूज कर सकते हैं, कोई कहानी, कोई छोटा सा किस्सा भी आप बता सकते हैं, एनेक्डोट बता सकते हैं, या फिर उसे एक्सप्लेन कर सकते हैं। इट ऑल डिपेंड्स ऑन यू, हाउ यू वांट टू डू, हाउ यू वांट टू डेवलप दैट पैराग्राफ। लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज समिंग अप। समिंग अप, जैसा कि मैंने आपको बताया, कॉमन बॉन्ड जरूर क्रिएट करना चाहिए समिंग अप में आपका। ऐसा ना हो कि बिल्कुल अलग हट के आप कुछ कंक्लूजन बता रहे हैं। आपने जो भी बताया अब तक अपने पैराग्राफ में, टॉपिक सेंटेंस हो गए या पैराग्राफ डेवलपमेंट हो गई, जो भी आपने अब तक बताया, उनमें एक कॉमन बॉन्ड को क्रिएट करते हुए अपना कंक्लूजन स्टेटमेंट दे देंगे। सो यहाँ पर हम एक कंक्लूजन स्टेटमेंट में, समिंग अप में मैंने ये बताया, दिस इज डन बाय स्टेटिंग दैट देयर इज अ कॉमन बॉन्ड बिटवीन मैन एंड अदर क्रीचर्स। तो यहाँ मैंने इसे इस तरीके से बताया कि एक कॉमन बॉन्ड जरूर रहता है मैन और बाकी क्रीचर्स के बीच में। नाउ डेवलपिंग द बॉडी ऑफ द पैराग्राफ के लिए मैंने आपको डिफरेंट एग्जांपल्स दिए कि आप क्या क्या यूज कर सकते हैं। रीजंस आप बता सकते हैं या एग्जांपल्स आप दे सकते हैं। कोई छोटी सी स्टोरी, कोई इंसिडेंट इलस्ट्रेट करते हुए इस आइडिया को आप बता सकते हैं, या कोई आप स्टैटिस्टिक्स, कोई फैक्ट्स, फिगर्स बता सकते हैं, कोई डिस्क्रिप्टिव डिटेल दे सकते हैं। सो एक पैराग्राफ की बॉडी, यानी कि जब आप उसमें सपोर्टिंग डिटेल्स डाल रहे हैं, उसके बारे में मैं बात कर रही हूँ। जब आप उसमें कुछ सपोर्टिंग डिटेल्स डालेंगे तो उस बॉडी ऑफ द पैराग्राफ को डेवलप करने के लिए आपको कुछ ना कुछ चीजों की जरूरत पड़ेगी, कुछ हिंट्स चाहिए कैसे डेवलप करें। उनके लिए आपके लिए यहाँ कुछ हिंट्स हैं, जैसे कि आप उसका कुछ रीजन दे सकते हैं। मान लीजिए कि ग्लोबल वार्मिंग के ऊपर पैराग्राफ है, तो आप उसका रीजन देख सकते हैं कि एग्जैक्टली क्या रीजन है हमारे यहाँ ग्लोबल वार्मिंग का, अर्थ पे क्यों ग्लोबल वार्मिंग बढ़ती जा रही है। इस तरीके से आप अपने पैराग्राफ को आगे एक्सप्लेन कर सकते हैं कि क्या रीजंस रहे इस प्रॉब्लम के, या फिर आप एग्जाम्पल दे सकते हैं कि ग्लोबल वार्मिंग की वजह से क्या क्या खराब हो रहा है, या क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं, कौन कौन से एनिमल्स एक्सटिंक्ट होते जा रहे हैं। कुछ भी आप उसके एग्जाम्पल्स को देते हुए उस पैराग्राफ को डेवलप कर सकते हैं। या कोई एक छोटी सी स्टोरी अगर आपके एक्सपीरियंस में रही हो, कोई इंसिडेंट ऐसा रहा हो जो आपको लगे कि आपके आइडिया को इलस्ट्रेट कर सकता है, एक्सप्रेस कर सकता है, या कोई स्टैट्स हो आपके पास, कोई फैक्ट फिगर हो, तो वो भी आप दे सकते हैं अपने पैराग्राफ को एक्सप्लेन करने के लिए। और कुछ डिस्क्रिप्टिव डिटेल हो तो वो भी आप उसमें ऐड कर सकते हैं। इट ऑल डिपेंड्स ऑन यू कि आप कौन सा रास्ता चूज करते हैं, आपको क्या अच्छा लगता है, या आपको लगता है कि उस पैराग्राफ में क्या सूट करेगा, उसके अकॉर्डिंगली आप अपने पैराग्राफ की बॉडी को डेवलप कर सकते हैं। डेवलप तो कर लिया, लेकिन आपको ये बात भी जरूर ध्यान रखनी है कि उसमें कोहेरेंस होनी चाहिए। ऐसा ना हो कि एक स्टेटमेंट जो आपने बताई वो दूसरी स्टेटमेंट से कुछ रेलेवेंट ना हो। दोनों का आपस में रेलेवेंस होना बहुत जरूरी है, लिंक क्रिएट होना बहुत जरूरी है, सो दैट द रीडर कैन हैव दैट लॉजिकल रिलेशनशिप बिटवीन द स्टेटमेंट्स। वो पिछले पैराग्राफ और अगले पैराग्राफ में एक लॉजिकल रिलेशन क्रिएट कर सके,
एक लिंक बना सके, एक बॉन्ड बना सके। उस तरीके की कोहेरेंस की बहुत जरूरत रहती है एक पैराग्राफ में। तो इसके लिए आप उन्हें जोड़ के रखने आपको बहुत जरूरी है, मैंने जैसा बताया आपको। और आइडियाज और पैराग्राफ जो है वो ऐसे होने चाहिए कि जो उसमें आपने पैराग्राफ में आइडिया अपना देना चाहा है या एक्सप्रेस करना चाहा है वो आपके रीडर को जरूर समझ में आना चाहिए। ऐसा ना हो कि आपके रीडर को वो समझ नहीं आ रहा, आपने बस एक्सप्रेस कर दिया, अपनी बात कह दी, दैट इज ऑल। नो, you have to organize your thoughts properly and you have to create the logical argument that make them a beautiful idea। आपका आइडिया तो तभी ब्यूटीफुल लगेगा जब वो कुछ मीनिंग क्रिएट करेगा, कुछ लॉजिक क्रिएट करेगा। सो इसके लिए आपको उसको ऑर्गेनाइज करना जरूरी है, अपने थॉट्स को ऑर्गेनाइज करना जरूरी है, उनमें लॉजिकल आर्ग्यूमेंट बनाना जरूरी है ताकि आपका आइडिया एक ब्यूटीफुल आइडिया नजर आए। तो पैराग्राफ में कोहेरेंस आप कैसे अचीव कर सकते हैं? अब कोहेरेंस बनाने के लिए आपको कुछ मेजर और माइनर कनेक्टर्स की जरूरत पड़ती है। कनेक्टर्स क्या होते हैं? जो एक स्टेटमेंट को अगले स्टेटमेंट के साथ कनेक्ट कर देते हैं और इस तरीके से आपका रीडर पिछली लाइन और अगली लाइन में एक रिलेशन क्रिएट कर पाता है, एक लॉजिक क्रिएट कर पाता है और उसमें लिंक बना पाता है। मेजर कनेक्टर्स जो होते हैं वो हेल्प करते हैं मेन पॉइंट ऑफ द पैराग्राफ को ऑर्गेनाइज करने में। मान लीजिए आपने ग्लोबल वार्मिंग पे मैंने आपको एग्जांपल दिया, तो उसमें आप अगर रीजंस बताने लगे हैं तो आप ऑब्वियसली यहाँ पर फर्स्ट 1 2 3 4 करके तो नहीं लिख सकते। सो आपके रीडर्स को ये समझ आए कि आप अलग अलग रीजंस दे रहे हैं और उसमें 4 या 5 रीजंस दे रहे हैं, तो आप उसमें फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड या फाइनली करके या लास्ट में इन कंक्लूजन करके टू समराइज, इससे रीडर को ये समझ आएगा कि आप कुछ समराइज करने वाले हैं, कंक्लूड करने वाले हैं। वो समझ जाएगा कि जो नेक्स्ट स्टेटमेंट है उसमें आपको नेक्स्ट रीजन दिया है, सेकंड रीजन दिया है, थर्ड रीजन दिया है या कुछ कंक्लूजन दी है या कुछ समराइज किया है। अगर आप इस तरीके की वर्ड्स का यूज करेंगे जो कनेक्ट करेंगे तो इससे आपके रीडर को आसानी रहेगी आपके पैराग्राफ में कोहेरेंस बनाने में। माइनर कनेक्टर्स वो होते हैं जो कोहेरेंस बनाते हैं टू अ पैराग्राफ बाय कनेक्टिंग द सेंटेंसेस विद इन ईच ऑफ द मेन पार्ट्स ऑफ द पैराग्राफ। इसके लिए आप अदर्स, इंक्लूड, बट ऑल्सो, दैट इज, अगर आप बट का यूज कर रहे हैं तो रीडर को ऑटोमेटिक क्लियर हो जाएगा कि आप पिछली स्टेटमेंट के साथ अगली वाली स्टेटमेंट को कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हैं, कंट्रास्ट में है, तभी आपने बट का यूज किया है। इन एडिशन यूज कर रहे हैं तो रीडर समझ जाएगा कि पिछले स्टेटमेंट से अगला वाला स्टेटमेंट कुछ ऐड कर रहा है, उसी स्टेटमेंट का कुछ एडिशन है। या इंस्टेड ऑफ बोल रहे हैं तो यानी कि आप पिछले स्टेटमेंट में जो कहा उसके बदले में क्या यूज कर रहे हैं वो बता रहे हैं। फॉर इंस्टेंस बता रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल बता रहे हैं, तो इसका मतलब रीडर समझ जाएंगे कि पिछली स्टेटमेंट का कुछ एग्जाम्पल आप देना चाह रहे हैं या कुछ इंस्टेंट कोई आप उसमें इलस्ट्रेशन देना चाह रहे हैं। सो अपने पैराग्राफ में कोहेरेंस बनाने के लिए आपको इस तरीके के मेजर माइनर कैरेक्टर्स यूज करने चाहिए। इन्हें हम ट्रांजिशनल डिवाइस का भी नाम देते हैं। ट्रांजिशनल डिवाइसेस हो गए ऐसे वर्ड्स जो आपको हेल्प करेंगे सेंटेंसेस के बीच में एक लॉजिकल रिलेशन बनाने में। ऐसे वर्ड्स, ऐसे फ्रेजेस को हम ट्रांजिशनल डिवाइस कहते हैं। एग्जाम्पल में हम इनमें ले सकते हैं मोर ओवर, सिमिलरली, इन एडिशन टू, लाइकवाइज, बट ऑल्सो। सो इस तरीके के वर्ड्स जो होते हैं पिछले स्टेटमेंट के साथ अगले स्टेटमेंट को जोड़ने में हेल्प करते हैं। एक टेक्निक है जिससे कि आप पैराग्राफ में कोहेरेंस बना सकते हैं और वो टेक्निक है ट्रांजिशनल डिवाइसेस की टेक्निक। आप अपने सेंटेंसेस में इस तरीके के ट्रांजिशनल डिवाइसेस का यूज कर सकते हैं। ऐसे वर्ड्स और फ्रेजेस जो बहुत आसानी से स्मूथली आपके सेंटेंसेस को जोड़ेंगे, आगे और पीछे वाले सेंटेंस में लॉजिकल रिलेशन क्रिएट करेंगे, उन सेंटेंसेस को हम ट्रांजिशनल डिवाइसेस का नाम देते हैं। एक और चीज जिसका आपको खास तौर पे ध्यान रखना है अपने पैराग्राफ में वो है पंचुएशन। वैसे तो बहुत से पंचुएशंस होते हैं पर मोस्ट प्रोबेबली हम अपने पैराग्राफ में फुल स्टॉप्स का यूज करते हैं। कई बार हम अपने पैराग्राफ को और ज्यादा इफेक्टिव बनाने के लिए उसे क्वेश्चन भी यूज कर लेते हैं, पर मोस्ट ऑफ द टाइम्स वी यूज फुल स्टॉप। तो आपको ये जरूर समझ आना चाहिए कि आपने फुल स्टॉप कहाँ यूज करना है, कहाँ आपका एक स्टेटमेंट खत्म हो गया है और कहाँ से आपका नेक्स्ट स्टेटमेंट शुरू होगा। उनके बीच में एक स्टॉप देने के लिए आपको पंचुएशन का सही यूज करना।
अगर आप पंचुएशन का ठीक यूज नहीं करते हैं तो आपके पैराग्राफ में कुछ लिंक नहीं बन पाएगा, आपके सेंटेंसेस एक दूसरे के साथ जुड़ने में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आ जाएगी। रीडर को एक्चुअली ये समझने में बहुत प्रॉब्लम आ जाएगी कौन सा स्टेटमेंट कहाँ से शुरू है, कौन सा सेंटेंस कहाँ से शुरू है, कहाँ पे उसे एंड करना है। सो फुल स्टॉप आप जानते हैं कि एक मार्क होता है जिससे ये पता चलता है कि ये स्टेटमेंट यहाँ एंड हो रहा है, और ये एक डिवाइड करता है पैराग्राफ को डिफरेंट सेंटेंसेस में। एक पैराग्राफ में अगर आप 10 सेंटेंसेस बता रहे हैं तो 10 सेंटेंसेस को रोकने के लिए या एक उसे एंड करने के लिए आपको एक मार्क की जरूरत पड़ती है, वो है फुल स्टॉप। सो इस फुल स्टॉप का आपको बहुत केयरफुल तरीके से यूज करना है, क्योंकि अगर आप इसे ठीक से यूज नहीं करते हैं तो इट विल क्रिएट केओस इन द होल पैराग्राफ। आप जानते हैं कि कोई भी स्टेटमेंट हम एंड करते टाइम कभी भी एक फुल स्टॉप का यूज करते हैं। जब हमारा वो एक सेंटेंस फिनिश हो जाता है तो हम एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ देख सकते हैं, आई गो शॉपिंग एवरी डे, लीव मी अलोन, आई एम नॉट कमिंग, ही इज गोइंग टू द मार्केट, ही इज गोइंग अलोन। कुछ भी आप कह सकते हैं। जब एक स्टेटमेंट खत्म हो गया, एक सेंटेंस खत्म हो गया, एक ग्रामेटिकली अगर देखा जाए तो एक सेंटेंस स्ट्रक्चर फिनिश हो गया, तो आपको वहां फुल स्टॉप का यूज करना है, अदरवाइज आपके पूरे पैराग्राफ में प्रॉब्लम आएगी रीडर्स को उसे समझने के लिए। सो इस बात का जरूर ध्यान रखें कि आप पंचुएशन का कब और कैसे यूज कर रहे हैं, स्पेशली द फुल स्टॉप। अदरवाइज बहुत कम हम क्वेश्चन मार्क्स भी यूज करते हैं, पर मोस्टली हमारे स्टेटमेंट्स जो हैं वो नॉर्मल स्टेटमेंट्स रहेंगे, उनमें आपको फुल स्टॉप का यूज करना होगा। कुछ सेंटेंसेस में इफेक्ट देने के लिए कई बार हम क्वेश्चंस का यूज कर देते हैं, वहां आप क्वेश्चन मार्क भी लगाएंगे। जो एक क्वेश्चन अगर आपने मान लीजिए एक अपने आइडिया को एक्सप्रेस करने के लिए या किसी तरीके से आप फैक्ट्स फिगर्स को एक्सप्लेन करने के लिए कई बार आप क्वेश्चंस का भी यूज करते हैं, वहां आप क्वेश्चन मार्क लगाएंगे, बट मोस्ट ऑफ द टाइम्स आपको फुल स्टॉप का जरूरत पड़ेगा। सो मार्क इट अकॉर्डिंगली एंड केयरफुली। This is all about this session. We are going to learn more about paragraphs, कि कैसे आपको डेवलप करना चाहिए अपना पैराग्राफ, उसकी बॉडी को कैसे डेवलप करना चाहिए, और आप क्या क्या टेक्निक्स का यूज कर सकते हैं अपने पैराग्राफ को और इफेक्टिव बनाने के लिए। यहाँ हमने पढ़ा कि एक्चुअली टॉपिक स्टेटमेंट क्या होता है, उसके साथ आपकी सपोर्टिंग डिटेल्स कैसे लिंक करनी चाहिए, कोहेरेंस कैसे होना चाहिए, ट्रांजिशनल डिवाइसेस क्या रहे, और कैसे आप अपने पंचुएशंस को यूज कर सकते हैं। इसके अलावा भी हम बहुत कुछ पढ़ेंगे, but in the next lecture, that is all for this session by now. Thank you. Thanks a lot.